يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء فيفضل مداد العلماء على دماء الشهداء ولغدوة في طلب العلم أحب إلى الله تبارك وتعالى من 100 غزوة. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مل کر اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں. اپنے آقائے نامدار مدنی تاجدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں. پڑھی بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. ماشاءاللہ لائٹنگ مبارکباد ہیں ہمارے پرسپور کے جملہ سنی صحیح عقیدہ مسلمان اور خاص کر یہ نوجوانان اور کمیٹی کے افراد جنہوں نے اپنی محنتوں مشقتوں سے اللہ اور اس کے رسول کی پیاری محفل کو کانفرنس کی شکل میں رچایا اور بسایا ہے. رضی مولا تعالیٰ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رحم تراز ہیں. عریضہ یوں پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا امام آدم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں رقم تراز ہے. یا سید السادات جیتو کا قاصدہ ورجو رضا کا وحتمی بحما کا واللہ یا خیر الخلائق ان لی قلبا مشوقا لا یروم سوا کا یا مالکی کن شافعی فی فاقتی انی فقیر فی الورا لغنا کا یا رسول اللہ. سیدنا امام بوسیری مصر شریف کے سرزمین سے پکار اٹھے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ہمارے حضرت آپ کے حضرت مجدد دین و ملت آیت من آیات اللہ معجزت من معجزات رسول اللہ غواص بحر معرفت فخر زمین و زمن جبل الاستقامت کنز الکرامت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فادر بریلوی علیہ رحمت و رضوان بڑی اچھے انداز میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رقم تراز ہیں. عریضہ یوں پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جام جانے تجلہ کہوں تجھے اے جانے جام جانے تجلہ کہوں تجھے. اور آگے چل کر فرماتے یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حضرات اعلیٰ حضرت سرکار کا نام ہم اور آپ لیتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں جانتے رہتے ہیں اور کسی حد تک پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اترولہ کا علاقہ بڑا حساس علاقہ ہے سنیت کے حوالے سے جن کو میں ابتدا سے لے کر آج تک اپنی نو عمری سے لے کر بلوغت کی تحلیل سے لے کر اب تک میں انہیں جانتا پہچانتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بپایا فضل عظیم ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو اہل سنت والجماعت میں رکھا ہے سنی بنا کر کے رکھا. اور یہ اتنی بڑی دولت ہے
جس کا آپ اندازہ لگانا چاہیں تب بھی آپ نہیں لگا سکتے، کیونکہ آپ حقانیت سے نابلد ہیں، آپ جانتے تک نہیں ہیں۔ بار بار اسٹیج پر جب پڑھتے ہیں جو بھی بیٹھتا ہے کم سے کم وہ اعلیٰ حضرت سرکار کا نام ضرور لیتا ہے، لیکن لیتا کیوں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، آخر کس وجہ سے؟ ارے پوری دنیا میں اگر ہم اور آپ اگر کوئی کسی سے ملاقات کرتا آج کے دور میں تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے، پوچھتے ہیں آپ کی برادری کون سی ہے؟ جس کو اسلام مٹانے آیا تھا، جس چیز کو اونچائی اور نیچائی کو مٹانے اسلام آیا تھا، آج ہم اسی چیز کو دوبارہ رائج کر رہے ہیں اور اس کو پروان دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کو ہم برادری کے نام پر تانا دیتے ہیں۔ یہ ہماری عادت ہے، یہ ہماری خلقت میں شامل ہے یہ، اور یہ ایک کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ تمام اکثر لوگوں کا یہ طور و طریقہ ہے۔ مگر دیکھیں اعلیٰ حضرت سرکار کو ہم برادری کی بنا پر نہیں جانتے، اعلیٰ حضرت سرکار کو ہم بریلی شریف ہونے کی بنا پر نہیں جانتے، اعلیٰ حضرت سرکار کو ہم ملک کی کسی سطح پر یا کسی دہلیز پر ہونے کی بنا پر نہیں، اگر ہم جانتے ہیں تو فقط عشق مصطفیٰ کے بنا پر جانتے ہیں، عشق مصطفیٰ کی بنا پر جانتے ہیں، اور یہی عشق مصطفیٰ ہمارے دل میں گھر کر جائے۔ اترولا والوں وہ تم ہو کہ دنیا آپ کا طواف کرتی ہے اور آپ کے عشق و وفا کی مثالیں پیش کرتی ہے۔ یقیناً یہ اتنا حساس علاقہ ہے جس کی مثالیں دنیا میں پیش کی جاتی ہیں، میں بہت دور دور تک جاتا ہوں، شہر اترولا کا جیسے نام لیتا ہوں، کہتے ہیں وہ اترولا جو سنیت کا بالکل گڑھ ہے، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و وفا پر اور آپ کے نام پر جان قربان کرنے والے موجود ہیں۔ اللہ کے مقدس ولی کے نام اس بزم کو رچانے والوں، پرسپور اور قرب و جوار سے آئے ہوئے زندہ دل مسلمانوں، اس مفہوم کو ذرا آپ سماعت کرو، عشق کہتے کسے ہے؟ عشق آخر ہے کیا؟ کیا فرق ہے جس کی بنا پر ہم دوسروں پر تنقید کرتے رہتے ہیں، انگلی اٹھاتے رہتے ہیں اور اپنی تعریف کرتے رہتے ہیں؟ آخر وہ بھی تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے طبقے ہیں سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیارے مصطفیٰ کو جانتے اور مانتے ہیں، لیکن کیا سب کا دعویٰ درست ہے؟ کیا سب حقانیت پر ہیں؟ ابھی میں نے جس شعر کو پیش کیا ہے، ذرا اعلیٰ حضرت سرکار کے نہج کو دیکھو، اعلیٰ حضرت سرکار کے منزل کو دیکھو اور ان کے علوم و فنون کے ارتقاء کو ذرا دیکھیں۔ وہ مصر کی دہلیز جسے اسکندریہ کہتے ہیں، اسکندریہ جائیں بالکل بحر احمر کے کنارے پر ہے، وہاں پر جائیں تو ایک سما کو محسوس ہوتا ہے۔ وہیں پر ایک شخصیت جسے امام شرف الدین بوسیری کے نام سے لوگ جانتے ہیں، جن کے اشعار کو میں نے پڑھا ہے، جس اشعار کو چاہے صوفیاء ہو، چاہے اولیاء ہو، چاہے علماء ہو، چاہے اتقیاء ہو، چاہے اقیاس ہو، چاہے نقبا ہو، چاہے نوجبا ہو، جو بھی ہو، سب ان کے اشعار کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کر اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کرتے ہیں۔ آخر یہ ہوا کیسے؟ انہی کا شعر لکھا ہوا، ایک نے شیخ نظام کو وقت کے کیا کہتے ہیں حکمراں کو دیا تھا، جن کا نام نظام تھا، ان کو دیا تھا، کہا تھا تمہارے پاس لوگ چل کر کے آئیں گے اور آنے کے بعد کوئی تم سے مال مانگے گا، آنے کے بعد تم سے کوئی دولت مانگے گا، آنے کے بعد تم سے کوئی دنیا مانگے، آنے کے بعد تم سے کوئی چیز طلب کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مریض تمہارے پاس شفا لینے کے لیے آئے تو کچھ مت کرنا، یہ ورقے میں جو لکھا ہے اسی ورقے کو پڑھ لینا، یا تو اس کے سر پہ رکھ کر کے مس کر دینا، انشاءاللہ وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اگر کوئی مریض چل کر کے آتا وقت کے حاکم کے پاس تو وقت کا حاکم وہی ورقہ نکالتا تھا، نکالنے کے بعد اس کے سر پہ رکھ دیتا تھا، اسے مس کر دیتا تھا، بس وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ ارے آنکھ کا پریشان حال، جس کی آنکھیں بالکل جس سے نور غائب ہو گیا تھا، واپس پلٹا، اس نے کہا اے شیخ نظام تمہارے پاس ایک ورقہ ہے، تمہارے پاس ایک کاغذ ہے جس میں کچھ لکھا ہوا ہے، کوئی مریض تم تک چل کر کے آتا ہے، تم اسے مس کر دیتے ہو، وہ شفایاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، ولیوں سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں، اس روایت کو سنو، آپ کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی۔ شیخ نظام سے جب اللہ کے بزرگ کا گزر ہوا، وہ پوچھتے ہیں شیخ نظام یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی ورقہ ہے، تمہارے پاس کوئی پیج ہے جس میں کچھ لکھا ہوا ہے، کوئی مریض آتا ہے اس کو تم لگا دیتے ہو، مس کر دیتے ہو، شفایاب ہو جاتا ہے، آخر اس میں ہے کیا؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو ذرا ہی۔ وقت کے حاکم نے کرسی پر بیٹھ کر کہا تھا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں لکھا کیا ہے، بس اتنا جانتا ہوں آپ ہی کی طرح کسی فقیر کا گزر میرے دروازے سے ہوا تھا، اس نے کہا تھا یہ ورقہ لے لو، اور لینے کے بعد کوئی مریض آئے، تمہارے پاس دولت ہے تم دولت بانٹو گے، تمہارے پاس عمارت ہے عمارت بانٹو گے، تمہارے پاس مناصب ہے منصب بانٹو گے، جو تمہارے پاس ہے وہ سب بانٹو گے، مگر شفایابی دینا تیرے بس میں
جیران بدی سلم مزست تمانچرا من مقلت بتمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وہ قصیدہ پڑھتا جسے پڑھتے تو مریض اٹھ کر شفا یاب ہوتے ہوئے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ عرص مقدس حضرت علامہ مفتی معین الدین صاحب قبلہ ازہری پیر و مرشد کے ماننے والے حضور سیدی تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں ایک مرتبہ ہاتھ میرے خاطر میں اٹھا دے بھائی سبحان اللہ ماشاءاللہ سب کے سب بیدار ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے ایسا تو نہیں کہ آواز ٹکرا کر کے کہیں وہ معاملہ دوسرا ہو رہا ہے کئی جگہ میں نے سنا حضرت آپ تقریر بول رہے تھے میں مجمع میں بیٹھا ہوں لیکن سمجھ نہیں پایا آپ بول کیا رہے ہیں آواز بالکل کلیئر ہے آپ کو سنیں آپ دیکھیں 12 سال سے وہ جس کو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ اکثر یہی بیان کرتا رہا آخر کیوں اس در انور پر پہنچ کر مجھے اس کو بیان کرنے کی اجازت ملی ہے میں اس کا معلوم ہوں اسکندریہ میں جا کر امام بوصیری کے تربت انور کے سجادہ نشین نے مجھے اجازت دی اور جب سے میں اشعار کو پڑھنے لگا میں کہتا ہوں میرے علوم پر مت جائیے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے جو مجھے دیا ہے مجھے کسی پر ناز نہیں اگر ناز ہے تو پیارے مصطفیٰ کے اسی نسبت پر ناز ہے 12 سال سے بستر پر لیٹے ہوئے تھے سارے ڈاکٹر جواب دے گئے تھے ایک رات خیال آیا تھا بوصیری کو یہی قصیدہ لکھنے والے جس کے 1000 قصیدے ہوں گے مگر قصیدہ کچھ نہ مقبول نہ ہوا آپ نے فرمایا تھا بلم ارید زہرت الدنیا التي تتفت یدا زہیر بما اپنا علی حرمی آج اسی اسٹیٹ کی دنیا پر ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے قاری صفی اللہ صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے علماء بیٹھے ہوئے بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کوئی تعریف پر آتا ہے تو تعریف کے پل باندھتے باندھتے کسی بھی شخصیت کو ابتر کر دیتا ہے لیکن میرے پیر و مرشد حضور سیدی تاج الشریعہ وہ پنجاب کے دہلیز پر جب آپ گئے تھے اور 1:30 بجے رات کو جب اسٹیج پر بیٹھے تو کوئی شاعر اٹھ کر کے کھڑا ہوا اور آپ کا قصیدہ پڑھنے لگا آپ نے فرمایا میاں تم یا تو بیٹھ جاؤ یا پیارے مصطفیٰ کی تعریف پیش کرو اختر رضا اسی سے خوش ہو جائے گا شمشیر رضا صاحب کی اللہ رضی آپ بھی دیکھیں علماء اہل سنت علامہ صاحب کی اللہ سب کے سب تشریف فرمائے فرمایا میری تعریف نہ کرو پیارے مصطفیٰ کی تعریف کرو 12 سال سے بستر فرض پر ہیں سارے ڈاکٹر جواب دے گئے رات خیال پیدا ہوا کہ لاؤ پوری دنیا کے طبیبوں کو دیکھ لیا مدینے والے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں جیسے یہ اشعار لکھنا شروع کیا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من رب و من عجم چلتے چلتے ایک جگہ آپ کا قلم رک گیا جب قلم رکا تو سوچتے ہیں آخر لکھوں تو کیا لکھوں اسی 605 میں ہے کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی اتنے بڑے فقہ کے عالم اور پوچھے علماء سے وہ استاد الشعراء شیخ شرف الدین امام بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں جن کے دم قدم سے نپٹ کر کے بہت سارے شعراء شاعر ہو گئے لیکن اس شاعر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر لکھے تو کیا لکھے صرف شعر لکھا تھا اس نے فمبلغ العلم فیہ انہ بشر میرے علم کی انتہا یہاں تک ہے کہ آپ نوری بشر ہیں آگے لکھوں تو کیا لکھوں بات کو سمجھ میں نہیں آتی ہے اسی 605 میں تھے کروٹیں بدل رہے تھے نیند آئی خواب میں پیارے مصطفیٰ مکی سردار مدنی تاجدار تشریف لے کر کے آئے کہا بوصیری اٹھو کہو کہنا کیا چاہتے ہو ابھی تک 12 سال تک سارے ڈاکٹر پریشان تھے کہ اس کو شفا کیسے دینی ہو خالی جٹے پایا حصہ لونچ لیکن میرے آقا نے صرف ایک اشارہ فرمایا بوصیری اٹھو صرف اتنا اشارہ مدینے والے تاجدار کا فرمانا تھا امام بوصیری اٹھ کر پیارے مصطفیٰ کے شان میں قصیدہ پڑھ رہے ہیں درود و سلام پڑھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار طلب کر ارشاد فرماتے ہیں ارے میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں ترے میں بہا دیے ہیں جب بات پہنچی مرشدی سیدی تاج الشریعہ کے تب پوچھا عطا کیا ہے کہا پیارے مصطفیٰ کی عطا پوچھتے ہو تو سناؤ میرے آقا وہ آقا ہے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عشق محبت مستی مستی کریا کریا فیضان حضور ملنگ شاہ عشق ذرا سماعت کریں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در انور سے تھوڑی تھوڑی بات پر آپ سوچتے ہیں کیسے گستاخی ہو جاتی ہے آؤ میں صحابی کا عقیدہ آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی بخاری شریف کے حوالے سے
सहाबी का अकीदा खुद इश्क रसालत की तहरीज पर तबाह मचल जाएंगे। ए परस्पुर में आए ये पूरे इलाके और यहाँ से लेकर बस्ती तक जुमला सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों। मोइनुद्दीन अज़हरी से बुखारी शरीफ से अल्लामा मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन बर्दिस्बाल बुखारी अल जाफी अल जादी रहमहुल्लाह का अकीदा लेकर के जाओ। सहाबी रसूल है, उठ करके खड़े होते हैं, सहाबा में पैगाम दे रहे हैं। मेरे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाया, यूं फरमाया, यूं फरमाया। एक जगह आकर एक रवायत बयान की फरमाया, चार जानवरों की कुर्बानी मेरे आका ने मना फरमाया। ऐसे उंगली का इशारा किया था। जरा इसको रोका के दहलीज पर बैठो और इस सेंसिटिव मैटर को जरा आप समझे तो, हसास मैटर को समझे तो कितनी बारीकी है इसमें। फरमाया साहबी रसूल ने कि 4 जानवरों की कुर्बानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। मसलन जैसे आप जानते हैं, साल भर से एक दिन भी कम हो, एक दिन भी कम हो, उस जानवर की कुर्बानी कबूल नहीं है। ऐसे ही बंदा जानवर कटा पिटा हो, है कि नहीं, उसकी जो कुर्बानी कबूल नहीं। ऐसे जानवर इतना लागर हो, इतना कमजोर हो कि चलकर जा ना सकता हो कुर्बान गाह को। उस जिस बकरी के पेट में बच्चा हो, है कि नहीं, बच्चा होने की हालत में उसको कुर्बान नहीं कर सकते। ये कैफियत, इन चीजों को बयान करने के बाद सहाबी रसूल बैठ गए। जब बैठ गए, मजलिस खत्म हो गई, सहाबा जाने लगे। उनके जहन में ख्याल पैदा हुआ, सहाबी रसूल फिर से उठे और उठे के बाद फरमाते, मेरे सहाबा, मेरे साथियों, रुक जाओ। बुखारी शरीफ की हदीस में कहा, रुक जाओ, करीब आओ। करीब आए, फिर से खड़े हुए और खड़े होने के बाद बस इस जुमले को ले लो और अपने ईमान और अकीदे की तहरीज को पुख्ता करो मुसलमानों। सरसब्जो शादाब करो अपने ईमान की खेती को। फिर से खड़े होते हैं और अरीजा पेश करते। मैंने कहा कि मेरे आका ने इसी तरह से फरमाया कि 4 जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं है, इसी तरह से फरमाया। मगर ऐ मेरे साथियों, मेरे सहाबा, सुन लो, कसम उस खुदाए वादहुल शरीफ की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मेरे ये उंगलियां प्यारे मुस्तफ़ा की उंगलियों से छोटी हैं। फरमाया, मेरी ये उंगलियां प्यारे मुस्तफ़ा की उंगलियों से छोटी हैं। मजमा चला गया था, सहाबा चले गए थे, वापस पलटाने की जरूरत। प्यारे आका ने इसी तरह से उंगली करके इशारा फरमाया था। प्यारे आका ने इसी तरह से उंगली करके इशारा फरमाया था। 4 जानवरों की कुर्बानी कबूल नहीं, जायज नहीं है। सहाबी जब बयान करते हैं तो दोबारा पलटा करके मजमे को, सहाबा को मुखातब करते हैं। मेरे सहाबा सुन लो, हो सकता है किसी के जहन में ये ख्याल पैदा हो कि मेरी उंगलियां प्यारे मुस्तफा की उंगलियों के बराबर हैं। क्या ये सहाबी से तो नहीं हो सकता, ये मुझसे से सहाबी से तो नहीं, मुझसे नहीं हो सकता है। अरे सहाबा मेरे सुनो, अरे मेरे साथियों सुनो, कसम उस खुदाए वादहुल शरीफ की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। प्यारे मुस्तफा की उंगलियां मेरी उंगलियों से बड़ी है और मेरी उंगलियां मेरे मुस्तफा की उंगलियों से छोटी है। गोया ये अकीदा मक्की सरदार मदनी ताजदार के सहाबा से मिल रहा है। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा। नबी का चाहो जलाल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का चाहो। ये उंगलियां बताए, 4 उंगलियां छोटी। ये इशारा आप समझ रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं। जो लोग कहते हैं माज़अल्लाह हमारे बड़े भाई हैं, मैं तफसील में ज्यादा नहीं जाना चाहता, बहुत ही मुख्तसर वक्त लेकर आप तमामी हजरात के सामने आया हूँ और इसके मुस्तफ़ा की तहरीज पर बैठ कर वो रवायत समाप्त कर लें। अच्छा, एक बात बताओ, पूरी दुनिया का सबसे खुशनसीब बंदा वो कौन है? उससे ज्यादा खुशनसीब कौन हो सकता है जिसे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ये काम करो? वो है कि नहीं? मैं आता सहाबी से फरमाए ये करो, उससे ज्यादा खुशनसीब कौन हो सकता है? और उससे ज्यादा खुशनसीब कौन हो सकता है मेरे आका जिससे फरमाए ये ना करो? करना ना करना, आपका कहना और आपका करना, इन्हीं 4 चीजों का नाम हदीस है। आका के कहने का नाम हदीस, आका के करने का नाम हदीस। सहाबी कोई काम करे तो आका फरमाए करो, सहाबी कोई काम करे तो आका फरमाए ना करो, इसी का नाम हदीस है। मिन अक़वालिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अफ़आली व तक़रीरात, इसी का नाम हदीस है। अब जरा देखें, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफे अव्वल हैं। सबसे पहले मौला अली की रवायत बयान करूं या हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की रवायत? 2 रवायत मैं आपके सामने रखूंगा, बताएं आप। सबसे पहले हजरत मौला अली की है, मौला अबू बकर सिद्दीक की, बताएं दोनों में से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मौला अली की, माशाअल्लाह, हजरत मौला अली के हसनैन के बाबा के चाहने वाले हैं, सुभान अल्लाह। आजकल तो एक पूरा मफहूम स्टेट की दुनिया से और कुछ लोग इस तरह से वो किए हुए हैं
कि हजरत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की अफजलियत गोया मुनकिर नजर आती है और कहते हैं कि हजरत हम मौलाई हैं, बहुत जरूरी। अपने आप को कहते हैं कि हम मौलाई हैं। अरे अहले सुन्नत वल जमात के मानने वालों, हमसे बड़ा मौलाई कोई नहीं है, हमसे बड़ा मौला अली का चाहने वाला कोई नहीं है। अरे हम ही वो हैं जहां हजरत मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम को मानते हैं, जहां इमाम हसन को मानते हैं, जहां इमाम हुसैन को मानते हैं, वहीं पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक को भी मानते हैं, उमर फारूक आजम को भी मानते हैं, उस्मान गनी को भी मानते हैं। अरे इन्हीं सारे सहाबा के मानने का नाम मोमिने कामिल है। इसलिए कि हम मौला अली को मानते हैं और मौला अली की मानते हैं, मौला अली को मान करके उनकी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और सैयदना मौला अली ने अबू बकर सिद्दीक को माना तो हम भी मानते हैं, उमर फारूक आजम को माना तो हम भी मानते हैं, सैयदना उस्मान गनी को माना तो हम भी उन्हें मानते हुए वाह वाह वाह, इत्तेफाक हो रहा था। वाह वाह वाह, यही चल करके आए थे यहूद नसारा, इत्तेफाक हो रहा था। ये मफहूम वाज़े कर देना ज़्यादा जरूरी है, वाह वाह वाह, क्योंकि आजकल हमारा मुआशरा किसी तरफ गड़बड़ ना हो, किसी तरफ इधर उधर लचके नहीं। अच्छा है। लचका तो जान लो, हम लोग आपके संभालने वाले हैं। अगर हमारे बयान करने में या पहुंचाने की कमी हुई तो हमें पकड़ा, हम पकड़े जाएंगे, और आपके सुनने में और अमल करने में कमी हुई तो आप पकड़े जाएंगे। दोनों की जिम्मेदारी है, सुन लो, यहाँ हमारी जिम्मेदारी और अमल करना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि हम अमल से खारिज हैं, हम कहते भी हैं और करते भी हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, और आप सुने और करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब जरा समाप्त करें, सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम है, यहूद व नसारा से मुआहदा हो रहा है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मौला अली लिखो। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु लिखने लगे। मुआहदा हो रहा था किससे? यहूद व नसारा से, वो भी मदीना तैयबा के उमूर पर। ठीक है, लिखो। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु इतना लिखते हैं, मिन मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना हेडिंग लिखते हैं ऊपर, उसके बाद नीचे लिखना शुरू करते हैं। इतने इतने बातों पर मुआहदा हो रहा है, इस बात पर इत्तेफाक हो रहा है। फिर ये हुआ कि उधर के सरदारान ने कहा कि मौला अली उठ करके आप सुना दें, आपने लिखा क्या है। जैसे ही मौला अली उठते हैं, आपका एक तरफ तशरीफ फरमाए सहाबा और एक तरफ यहूद व नसारा और उनके रूसा। जैसे ही मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, मिन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे एक यहूदी ने उठ करके कहा कि ए अली, इस लफ्ज को काट दो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह काटो, रसूलुल्लाह काट दो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो, क्योंकि हम यहूद व नसारा हैं। अगर हम मोहम्मद को रसूल मान ले तो हमारे तुम्हारे में इख्तिलाफ क्या है। बुखारी शरीफ से मैं एक बहुत हसास मैटर आपके सामने पेश करता हूँ। अकीदा दुरुस्त करने वालों, अकीदा दुरुस्त करो तकरीरें तो हम और आप सुनते रहते हैं, मैं भी सुनाता रहता हूँ, मैं सुनाने का कायल हूँ, आप सुनने के कायल। मैं जानता हूँ ये बहुत इलाका बहुत ही हसास इलाका है सुनने सुनाने के हवाले से। मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कुफ्फार ने कहा कि इस लफ्ज को काटो, रसूलुल्लाह काट दो, इतना लिखो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मोहम्मद जो अब्दुल्लाह के बेटे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना लिखो, रसूलुल्लाह मत लिखो, क्योंकि अगर रसूलुल्लाह हम मान लें तो हमारे तुम्हारे अकीदे में कोई फर्क नहीं होगा। तब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात का जायजा लिया और मेरे आका फरमाए, अच्छा एक बात बताओ, परस्पर और कुर्ब जवार से आए ये जिंदा दिल मुसलमानों, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरे आका जो फरमाए सहाबी पर अमल करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। आप बताएं, जरूरी है कि नहीं जरूरी है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जायजा लिया, जायजा लेने के बाद फरमाया, अली उतना काट दो, जितना ये कह रहे हैं उतना काट दो। ओ मौला अली है, हाथों उठा करके बोल दे, एक मौला फिर से बोल दे। यहीं पर वफा को देखें, मोहब्बत को देखें और इश्क को देखें, आप पहचान जाएंगे कि इश्क मुस्तफा कहते किसके। वाह वाह वाह, मेरे आका खुद फरमा रहे हैं, अली उठना काट दो। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जाकर इमाम बुखारी से पूछो, भाई कहीं और से नहीं। और जिसको हवाला चाहिए आए, मैं हवाला उसको पेज नंबर के साथ, उसको मैं वर्का पढ़ा करके उसको तफसीर और तौज़ीह के साथ बता सकता हूं। ये काम हम लोग दरगाहों में करते हैं। वाह वाह, कोई यहाँ स्टेज पर बैठकर इधर उधर, ये लोग कहते हैं ना कि सुन्नत अहले सुन्नत वल जमात के मौलाना हजरात जब बैठते हैं स्टेज पर तो ईरान तुरान की बहस करते हैं। मैं कहता हूँ आओ, कुरान और हदीस की कितनी तफसीरें तौज़ीह है तुम्हें चाहिए, लेकर के जाओ।
वाह वाह मगर आओ सामने टिको तो जरा सही, तुम टिक नहीं पाओगे, क्योंकि जिसका तुम खाते हो उन्हीं की शान में गुस्ताखी करते हो। और हम जैसे लोग तो बारहा कहते रहते हैं कि आओ और आला हजरत सरकार की जबान लो और कह दो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कहा रसूलुल्लाह काटो। सुभान अल्लाह। सब सहाबा भी देख रहे हैं मौला अली को, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देख रहे हैं, कुफार भी देख रहे हैं, तो इसको काटना पड़ेगा। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और बड़े आन बान शान के साथ कहा कि ये कुफार सुनो, तुम में से जिसको काटना है आकर के यहाँ काटे। जानते हो रसूलुल्लाह किस हाथ में लिखा है? वो अली ने लिखा है जिस अली के हाथ में तलवार हो तो खैबर कांपते हुए नजर आता है। वाह वाह। उस मौला अली ने लिखा है, ये कट नहीं सकता है, क्योंकि लिखने वाला अली है और अली का ये अकीदा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। बेशक सुभान अल्लाह। अली का ये अकीदा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब ज़हन व फिक्र को हाजिर करो। हजरत मौला अली को मेरे प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया था अली उतना काट दो, काटने के बाद सही तरीके से इतना लिख दो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बजाय इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो। मौला अली ने कुफ्फार की तरफ मुखातब होकर के कहा था, ऐ कुफ्फार ये तुम चाहते हो कि अली ने जिस हाथ से रसूलुल्लाह लिखा है, अरे उसी हाथ से रसूलुल्लाह को काट कर इब्ने अब्दुल्लाह लिखे। अली ने अपने अकीदे के मुताबिक लिख दिया है। अब कसम उस खुदाए वादहुल शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अरे अली के ये हाथ कट तो सकते हैं पर लिखा हुआ कभी कट नहीं सकता है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी, मसलके आला हजरत। जिसको ज्यादा दावा हो, क्या कहना, जिसको ज्यादा दावा हो कि हम मौला अली रज़ी अल्लाह तआला को ज्यादा मानते, वो सामने आए। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह तारीखुल खुलफा से लेकर के जामिउस सगीर और जामिउल कबीर में 7 तौर पे फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज्तमिउ फी क़ल्बि इम्रिइन मुमिनिन ईमानु अबी बकर मोहब्बत अली व बुग़्दु अबी बकर सिद्दीक। हदीस पाक हाथ को उठा करके सुभान अल्लाह बोल दे भाई। मैं जानता हूँ ना शरीफ पढ़े तो लोग नजराना पेश करते हैं सब कुछ, लेकिन काश ये दुनिया अरबी जानती। अरब की दुनिया में जाओ ना, जितने हदीस पढ़ो उतने नजराना मिलता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अरब की दुनिया में, क्योंकि वो समझते हैं कि कहने वाला कह क्या रहा है। और हमारे यहाँ जब तक तर्जमा ना करो तब तक सुनते लगता है उधर दरसगाह बैठे हुए हैं, तब तक समझते हैं लगता है दरसगाह बैठे हुए हैं। क्या बात है। ला यज्तमिउ फी क़ल्बि इम्रिइन मुमिनिन मोहब्बत अली व बुग़्दु अबी बकर सिद्दीक। जिनको ज्यादा दावा है कि मौला अली को ज्यादा मानते हैं, हम ज्यादा मानते हैं, हम ज्यादा चाहते हैं, हम ही सबसे बड़े ईमान वाले हैं, तो सुनो हदीस पाक आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो दिल मोमिन का दिल हो ही नहीं सकता जिसमें मौला अली की मोहब्बत भी हो और अबू बकर सिद्दीक की दुश्मनी भी हो। क्या कहना, दोनों जमा नहीं हो सकते। हजरत अबू बकर सिद्दीक की दुश्मनी भी, अदावत भी उस दिल में हो और उसी दिल में मौला अली की मोहब्बत, वो दिल मोमिन का हो ही नहीं सकता। तब गोया सहाबा ने सवाल किया या रसूल अल्लाह तो मोमिन का दिल है क्या आखिर? तो कहा जिस दिल में मौला अली की भी मोहब्बत हो और वही मौला अबू बकर सिद्दीक की भी मोहब्बत हो, वही दिल है। अरे आला हजरत सरकार तड़प कर इरशाद फरमाते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते। सुभान अल्लाह। एक तरफ प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत देर में, लेकिन ऐसे नीचे रख दो हमें, उससे नहीं, बस आप सुने और सुनने के बाद अमल करें, वरना कोई परस्पर वाले हैं, ऐसे नहीं तो वैसे देंगे, किसी तरह से देंगे। ये तो मेरा ननिहाल में किसी तरह से निकाल लूंगा, वाह, है कि नहीं? अपने एतबार से मैं निकलूंगा, क्या बात है, क्या कहना। है कि नहीं? सुने आप ज़हन व फिक्र को हाजिर करें आप। तो ये कैफियत
अब जान लो, जो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत जिस दिल में है, वही मोमिन का दिल हो सकता है कि उसी दिल में हजरत अबू बकर सिद्दीक की भी मोहब्बत हो, मौला उमर फारूक आजम की भी मोहब्बत हो, मौला उस्मान गनी की भी मोहब्बत हो, है कि नहीं? इन चारों की मोहब्बत हो तो समझो ईमान दिल में है, और चारों की मोहब्बत ना हो, किसी की मोहब्बत और किसी की अदावत हो तो कह दो, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते। सफीने को पहचानने की कोशिश करो। आप मौला अबू बकर सिद्दीक की रवायत सुन लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, वक्त बचे तो, वरना मुझे ज्यादा वक्त लेने का वैसे भी, क्योंकि मेहमान तशरीफ लाए हैं और ये मैं गांव के तौर पे इसको मानता हूँ, गांव है अपना अपना इलाका है इधर, तो मेहमान आए तो मेहमान की खिदमत की जाए, ज़हनो फिक्र को हाजिर करें। हजरत मौला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर जाओ नमाज पढ़ाओ। जब आका इस तरह अलालत पर थे, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। बोलो जानते कि नहीं जानते? कितने लोग जानते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ले इमामत पर पहुंचाया? हाथ उठा करके बताएं। इससे ये बात समझ में आई? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हाथ उठा करके, फिर से हाथ उठा करके बताएं। इतने लोग ही जानते हैं। अमा ये बात तो सबको जाननी चाहिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर अलालत पर जब आप मौजूद थे तो अबू बकर सिद्दीक को अपना इमाम बनाया था, कहा जाओ उम्मत मुस्लिमा की इमामत अबू बकर करेंगे। हजरत उमर फारूक आदम आए, कहा या रसूलल्लाह अबू बकर मौजूद नहीं, मैं आगे बढ़ूं? ला ला या अल्लाह व रसूलल्लाह। फरमाया नहीं, अल्लाह उसके रसूल और मुसलमान इस बात पर राजी नहीं होंगे कि अबू बकर के सिवा कोई नमाज पढ़ाए। अगर कोई नमाज पढ़ाएगा तो वो अबू बकर सिद्दीक होंगे। तब सहाबी के घर मौजूद है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, तब खलीफा चुना जा रहा था। तब मौला अबू बकर सिद्दीक ने मौला अली से मुखातब होकर के कहा था, अली क्या चाहते हो? तो मौला अली ने यही कहा था कि अबू बकर, प्यारे मुस्तफ़ा ने जिसे दीन का इमाम माना हो उसे दुनिया का बेईमान तस्लीम करते हैं। ये अकीदा लो, ये अकीदा मानो। ये अकीदा मानने में क्या जाता है? ये अकीदा मानोगे तो सिराते मुस्तकीम पर रहोगे, न यहाँ रुसवाई होगी न वहाँ रुसवाई होगी। और उन शियों का अकीदा लोगे तो यहाँ भी रुसवाई और वहाँ भी रुसवाई। लिहाजा हम तो वो हैं कि 10 दिन मुहर्रम में करबला वालों को भी मानते हैं, सुभान अल्लाह, और 10 दिन प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रबुल नूर शरीफ का एहतमाम करें तो 1 रात एहतमाम करें, लेकिन मौला इमाम हुसैन उनके नवासे का एहतमाम करे तो 10 रोजा एहतमाम कर। क्या बात है? ये मोहब्बत कम तुम्हें नजर आती है? अरे तुम्हें नजर नहीं आती, तुम आईना खटाओ, तुमने हसद का चश्मा पहन रखा है। तुम्हारा ये दावा है कि सिर्फ तुम ही मोहब्बत करते हो, नहीं, बल्कि हम तो वो हैं जो जहां मौला अली से मोहब्बत करते हैं वहीं हुसैन आजम से मोहब्बत करते हैं, वहीं प्यारे मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, और वहीं सैयदा फातिमा ज़हरा से भी मोहब्बत करते हैं। सबकी मोहब्बत हमारे दिलों में। मौला अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े, नमाज पढ़ाने लगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेटे हुए थे। बुखारी शरीफ के हदीस पाक है कि आका को इफाका हुआ, थोड़ी सी आपने राहत महसूस की। तब जब राहत महसूस की तो आका बिस्तर से उठे और आप मदीना शरीफ यानी मस्जिद नबवी में आप अंदर तशरीफ लाने लगे। जब अंदर तशरीफ लाने लगे सहाबा को आहट महसूस हुई, क्योंकि सहाबा को बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि आगा आके गए हैं या पीछे से तशरीफ ला रहे हैं। आका की आहट और आपके खुशबू से सहाबा पहचान लिया करते थे, खुशबू से पहचान लेते थे। आका पीछे से तशरीफ लाए, सहाबा बीच में रास्ता छोड़ रहे, सब बनी हुई है, नमाज पढ़ी जा रही है। अफजलुल इबादत नमाज है। अब जरा ख्याल करो मुसलमानों, ये नमाज 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 बहुत से लोग कहते रहते हैं ना कि सिर्फ नमाज सिर्फ नमाज सिर्फ नमाज, और अहले सुन्नत वल जमात है। हमारे उलमा जब बैठते हैं, हमारे लिए जहाँ नमाज भी वही मोहब्बत, जहाँ मोहब्बत नहीं वहाँ नमाज नहीं। यही तो है, यही तुम दावा करते हैं कि हमारे लिए जहाँ नमाज है वही मोहब्बत है, और जहाँ मोहब्बत रसूल नहीं वहाँ नमाज नहीं। क्योंकि नमाज पढ़ना, इबादत करना तो इस इब्लिसवा ने भी किया था कि नहीं किया था? अरे उसके सजदे तो पूरी दुनिया रूए जमीन पर फैलाए जाते, तब भी कम पड़ जाते कि नहीं पड़ जाते। हद तो ये है कि वो सहाबा में वो क्या कहते हैं, फरिश्तों में गुफ्तगू भी किया करता था। लेकिन हुआ क्या है, जब मौला तबारक व तआला ने फरमाया उसजुदु लि आदम, मेरे आदम को सजदा करो, तो कहा नहीं, आदम को तूने मिट्टी से पैदा किया, मुझे आग से पैदा किया। ये कैसे हो सकता है कि आग का पैदाशुदा मिट्टी के पैदा किए हुए को सजदा करे? मैं सजदा नहीं करूंगा। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, इनकार किया, तकब्बुर किया, काफिरों में से हो गया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया फखरुज फइन्नका मिनश शैतानिर रजीम, निकल जा क्योंकि तू शैतान रजीम में से है, निकल जा, तू बदबख्त है। शैतान इब्लीस लईन को जन्नत से निकाल दिया, क्यों? क्योंकि मेरे आदम को उसने सजदा नहीं किया था। जब आदम को न
करने की बिना पर इब्लीस लईन को मौला बाहर निकाल सकता है, तो जो आदम के भी नबी है उस नबी के शान में गुस्ताखी करने पर कैसे मौला तुम्हें माफ फरमाएगा? अल्लाह। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो किसी सूरत में नहीं हो सकता। अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े, जरा देखो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नमाज पढ़ने, नमाज अफ्जल इबादत है, एक तरफ इबादत एक तरफ मोहब्बत है। सहाबा रास्ता छोड़ रहे हैं, बीच में प्यारे मुस्तफा आगे जाने की अगली सफ में जाकर के बैठे, लेकिन जब अगली सफ में गए खड़े हुए, जैसे ही खड़ा होना था मौला अबू बकर सिद्दीक को भी आज महसूस हुई। हजरत मौला अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले इमामत से पीछे आने लगे। प्यारे मुस्तफा फरमा रहे अबू बकर नमाज पढ़ाओ, सल्लुन्नास सल्ली बिन्नास, अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ाओ, सहाबा को नमाज पढ़ाओ। अबू बकर पीछे चलते आ रहे हैं, जब मुसल्ले इमामत से पीछे आ गए, आका आगे बढ़े, नमाज अदा की। अदा करने के बाद फरमाते हैं ऐ अबू बकर इब्ने कहाफा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम नमाज पढ़ाओ? क्या या रसूल अल्लाह, नमाज भी आपके कदमों के सदके में हमने सीखा है। आमिना का लाल मौजूद हो और अबू बकर इमामत कराए, ये तो अबू बकर का ईमान नहीं, ईमान तो ये है इमाम प्यारे मुस्तफा हो और मुक़्तदी अबू बकर सिद्दीक मौला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इश्क है। आका फरमा रहे कि अबू बकर नमाज पढ़ाओ, लेकिन वो पीछे आ रहे हैं। पीछे और जब नमाज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल फराई, और ऐसा होता है आप शायद जानते हो कि ना जानते हो कि एक वक्त में एक नमाज दो इमाम तीन इमाम पढ़ा सकता है। एक ही नमाज दो तीन इमाम पढ़ा सकते हैं। आप सोचेंगे हजरत अब मुझे नियत बांध करके इमाम साहब खड़े हो गए तो दूसरे कैसे जाएंगे? अगर इमाम जमात में नमाज में इमाम साहब बैठे हुए से पूछे तशरीफ फरमा है, ये भी इमाम है। आप भी अक्सर उलमा अहले सुन्नत इमाम होते हैं मसाजिद के, और आप तो माशाअल्लाह मानते ही हैं इमाम किराम को। इमाम किराम की खिदमत किया करो, उनको माना करो, कसम खुदा की इनको मानते रहोगे। एक हदीस मुसलसल जिसे शेख अबू बकर ने मुसाफा करके मुसलसल, तसलसल जानते हो? मुसलसल मैं आपको बताऊं हदीस मुसलसल किसे कहते हैं कि उलमा जानते हैं, आप शायद नहीं जानते। हदीस मुसलसल इसे कहते हैं कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे अनवर से लेकर मुसाफा बिल मुसाफा वो रवायत उस तक बयान की जाए, वो रवायत बयान की जाए। जैसे प्यारे मुस्तफा ने सहाबा से मुसाफा किया तब फरमाया कि ये रवायत मौजूद है। सहाबा ने ताबईन से मुसाफा किया, कहा ये रवायत मेरे आका ने फरमाया है। ताबईन ने तबा ताबईन से मुसाफा किया तो फरमाया ये रवायत मौजूद है, ये आका ने फरमाया है। तबा ताबईन ने औलिया से मुखातबा, औलिया से मुसाफा किया, औलिया अतिया अभ्यास नजबा नुखबा शुरफा कुरमा उताद अब्ताल अबरार असियात अमजाद अशराफ, अब तक के उलमा मुसाफा करते करते आए। शेख अबू बकर ने जब मुसाफा किया तो मुसाफा करके फरमाया, हदीस मुसलसल है, मन साफानी फकद साफहल उलमा, मन साफहल उलमा फकद साफहानी व मन साफानी फकद दखलल जन्नह। वाह 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 वाह। मेरे आका फरमाते हैं मोहब्बत के साथ जिसने उलमा से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा, आका फरमाते हैं जिसने मोहब्बत के साथ उलमा से मुसाफा किया उसने गोया मुझसे मुसाफा किया, और जिसने मुझसे मुसाफा किया अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये हदीस मुसलसल है। मुझे शेख अबू बकर रहमतुल्लाह ने किसी हिंदुस्तान की आखिरी कड़ी हिंदुस्तान के जुनूब में दक्षिण में चले जाओ आप, जानते हैं आप मालाबार को, केरला की सरजमीन को जानते हैं, वहां सकाफत सुनिया मौजूद है। शेख अबू बकर बहुत बड़े बल्कि मुफ्ती बिलाल इंडिया, उन्होंने इस हदीस मुसलसल का, अब जरा बताओ मुझे, मुसाफा किया, मुसाफा करने के बाद फरमाया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अब सहाबी रसूल है, अब जरा उनकी कैफियत को मुलाहिजा करो। सहाबा किराम से ताबईन, तबा ताबईन, औलिया, औलिया उम्मत, ये सब मुसाफा करें तो मुसाफा करते करते मोहब्बत अगर पैदा हो जाए, कसम खुदा की इन्हीं उलमा की सोहबत करो और इनसे दीन सीखो। जब से उलमा से लोग फिरने लगे दुनिया में इनकी इज्जत कम होने लगी। जिस कौम में अब तक आलिम का वक़ार बाकी है, उलमा का वक़ार जिस कौम में अब तक बाकी है, अल्लाह ने उस कौम की इज्जत को बाकी रखा है। बहुत बहुत क्या कहते हैं, दिल की अता गहराइयों से बबाके तो हर मोइनुद्दीन नजरी इस बात को कहता, जिस अवाम में उलमा के धर्म अब तक बाकी है, उलमा की इज्जतें बाकी है, उलमा का धर्म बाकी है, उनका वक़ार बाकी है, उस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने अब तक इज्जत अता फरमाई है। जिस
इस कौम ने अपने उलमा को दुत्कार दिया, परवरदिगार की रहमत ने उसे दुत्कार दिया, क्योंकि यही उलमा है जिसके जरिए हम दीन तक पहुंचते हैं, और जो दीन तक पहुंचता है वो अपना अकीदा पुख्ता करता। अकीदा पुख्ता करो मुसलमानों। आजकल का सुलगता हुआ मौजू हमारे कौम की बहन बेटियां हैं, उसकी तरफ जरा ख्याल करो तो आपको पता चलेगा कमी किसकी है। अगर मैं पूछूं कि है परसपुर में जहां से लेकर बस्तियों को जवार तक पूरे क्या कहते हैं यूपी के चारों तरफ से आने वाले मुसलमानों, मुझे बताओ, मोइनुद्दीन अजहरी को जरा बताओ, अगर मेरे कौम की एक बेटी अगर किसी गैर मुस्लिम की तरफ जा रही है, अगर उसकी ज़हनियत, अगर उसका दिल मायल हो रहा है, अगर वैसे तो ये मीडिया वाले हमें गुमराह करने में जरा बराबर कमी नहीं छोड़ते, ना तो झूठ बोलने में कोई कमी इन्होंने छोड़ा है, ना तो गुमराह करने में इन्होंने छोड़ा है। कसम खुदा की अगर ये मुसलमान प्यारे मुस्तफ़ा की हदीस पर अमल न करते तो ये मीडिया वाले हमें कहां से कहां तक पहुंचा देते। मगर 1400 साल पहले मेरे प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, इत्तक़ू फिरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन के फहमो फरासत से बचो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अगर अल्लाह के नूर से देखने वाले मौजूद ना होते तो मीडिया वाले हम तक गुमराह कर रहे होते। अब तक 10 लाख हो गए, अब तक 20 लाख हो गए, अब तक 30 लाख हो गए। ये लाख गिनाने वालों तुम ही तो हो जो तलाक के मैटर पर एक औरत को सामने खड़ा कर कर उसमें 10-20 नौजवानों को नकाब पिला करके कहा ये सब औरतें समर्थन करने आई हैं। नहीं, मीडिया वाले तो पकड़े गए थे, इनका झूठ वही तो पकड़ा गया था। लेकिन अगर ये मीडिया वाले कहे एक नहीं बल्कि 1000 मान लो, 1000 नहीं बल्कि 1 लाख मान लो, तो मानने की जरूरत नहीं। वो तो हमको पता है, हमारे कौम की बहू बेटियों का, हमारे कौम की बहनों का ये आलम है कि जब उनसे पूछा जाए तुम्हारे दिल में इश्क वफा कैसे है, तो यही रमजान मुबारक का महीना गुजरते गुजरते गुजरा है। यही परस्पर और पूरे इलाके से मैं पूछूंगा, ये बताओ कि इस्लाम की हक्कानियत किसके दिल में ज्यादा है। नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर मर्द बैठे हुए हैं, मेरी माए बहनें अगर सुन रही होगी तो वो भी सुने। जरा दिल पर हाथ रख करके मुझे बताओ, सबसे ज्यादा रोजा कौन रखती है? हमने तो माहौल का जायजा लिया, सबसे ज्यादा रोजा रखने वाली हमारी कौम की बेटियां हैं। बेटियां बोलो, है कि नहीं है? मेरे कौम की बेटियां हैं। और ये कहते नहीं उनका ईमान हम छीन लेंगे। अरे तुमने हमारी बहनों के, हमारी बेटियों के ईमान को नहीं जाना। ये